Ministry of Ports, Shipping and Waterways, and he was very kind to me, expressing sentiments. I was worried. My wife could have disagreed. I am grateful to her for observing silence. माननीय मंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है. He has sought from everyone 100% commitment. तो मेरे को एक पुरानी घटना याद आ गई. When I had gone to the US along with my wife, and we had gone to Statue of Liberty. That was the time in 80s where you could go to Statue of Liberty freely. And there was a quote of Mahatma Gandhi. I respect your liberty because I care for mine. That was the substance of that quote. Ladies and gentlemen, the Union Minister Sarbanand Sonowal has asked for your 100% commitment because he always gives 100% commitment. I have something in common with him and not with others on the dais. We both are law graduates. Dr. Mahendra Bhai Muzpara, Honorable Minister of State, Ministry of Ayush, Ministry of Women and Child Development. ये पेशे से डॉक्टर हैं और दिल की बातें ज्यादा समझते हैं क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हैं. तो अपने भाषण में भी he has touched your heart and made a very impassioned plea that you all should be in missionary mode to serve humanity by being homeopath COVID warriors. Dr. Manoj Rajoria, इनसे पुरानी जान पहचान है. We belong to the same state. I came to know him for the first time even before he became Member of Parliament. It's his second term. Because he took a great initiative in having a homeopathic clinic in the name of his mother, Shanti. And his spinal strength of a university that promotes homeopathy. A simple man, a modest man, but an achiever all through. I take Dr. Manoj Rajoria as a foot soldier of homeopathy. Sri Sunil Kumar Gupta, a very senior IAS officer of 1987 batch, the Vice President. Well, he has a great spouse support. The wife is a doctor. An honor I share with him. My wife is also a doctor. Padam Shri Vaidya Rajesh Kotecha जी, इन्होंने मेरे को अंदर बाहर से देखा हुआ है. More than a decade ago, me and my wife had the occasion to go to his establishment in Jaipur. The establishment is on a height that matches his own height in the profession. Answer was enough, but it is computed in terms of service. There are two Subhas here, both are illustrious, sitting next to each other. I was required to be more fitter than now. They both believe in traditional medicine and homeopathy and then say it is non-invasive, it is impactful, it has no side effects other than positive effects on the patient.
उपस्थित महानुभाव, विश्व होम्योपैथी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। पर पिछले कुछ सालों में बात ही कुछ और है। शुरुआत 2014 में हो गई थी, पहले भी था, और 2017 से कोटेचा जी लगातार अपने मंत्रीगण के मार्गदर्शन में इंक्रीमेंटल ट्रेजेक्टरी पर है। की जो थीम है अत्यंत सार्थक है। होम्योपैथी परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। जब मैं इस पर ध्यान दे रहा था, मुझे एक और सामयिक विषय की याद आ गई। दुनिया में भारत का डंका तो बज ही रहा है। वी आर ऑन द राइज एज नेवर बिफोर एंड आवर राइज इज अनस्टॉपेबल। पर इस वर्ष भारत हैज द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, और क्या लोगो दिया है, क्या मोटो दिया है। हजारों साल की संस्कृति का निचोड़ है। मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और बिना स्वास्थ्य पहला सुख निरोगी काया, ये कहा गया है। बिना निरोगी काया के सब कुछ सार्थक नहीं होता, कुछ नहीं होता सार्थक। विश्व और जन कल्याण के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कहा, पहला सुख निरोगी काया। अमृत काल में हमको संकल्प लेना चाहिए। ये आजादी के 75 साल हैं। हमने जो यंगस्टर्स हैं, यू आर द रियल सोल्जर्स, वॉरियर्स ऑफ 2047। भारत 247 में क्या होगा, और वो तभी होगा जब हम स्वस्थ रहें, भारत पर गर्व करें, भारतीयता पर गर्व करें, और हम सजग रहें हर तरीके से कि जहां भी कहीं हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर कुअसर हो और भारत की अस्मिता पर प्रहार हो, कुंठित करना अनिवार्य है। देश हो या विदेश, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये हमारे सबका संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इस प्रकार की सभी कुप्रयासों को असफल करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। वी मस्ट एवर टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक अचीवमेंट्स एंड बी प्राउड इंडियंस। और मुझे बताइए क्यों नहीं, जिन्होंने सैकड़ों साल हम पर राज किया, सितंबर 2022 में उनको पछाड़ दिया। India became the 5th largest global economy on the planet, and by we must take pride for another reason. आप मन को टटोलिए, और a foreign dignitary on visit to this great democracy ever criticizing his nation, decrying his nation? क्या कभी भी आपने कभी देखा है कि भारत में विदेश से जो आता है या विदेश का कोई बड़ा व्यक्ति आता है, क्या कभी उसने अपने गृह देश के बारे में बुरी बात कही है? नहीं कही है। हमारी संस्कृति तो बहुत पुरानी है। जब आंसर नो है तो हमें तो उत्कृष्ट मापदंड दर्शाना चाहिए। चिंतन का विषय है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं? Why can't we take pride in our scientists? Why can't we take pride in our health warriors
Why can't we complement our innovation? कौन सा देश है दुनिया का जिसका कोविड मैनेजमेंट अपने देश से बेटर था? आप लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. We must honor ourselves. We must believe in our self-respect. We must complement our own talent. ऐसा नहीं कर हम बहुत नुकसान कर रहे हैं. We should not do it. And this has to be our national culture. एक सिंपल है, जब भी देश के बाहर जाएं, राजनीतिक चश्मे को यहीं छोड़ जाएं. उसमें देश का भी भला है, व्यक्ति का भी भला है. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसेस खत्म हो रही थी, उनका आखिरी भाषण था. एंड दैट वाज हिस्टोरिक. आप सबके समक्ष में इसलिए कहूंगा कि अगर आप हम सबको स्वस्थ रखेंगे और हमारी सोच में विकार आ गया, तो हम तो कहते हैं ना, कात्यो क्या तो कपास हो जाएगा. जिस कपास से हमने थ्रेड किया है, दैट विल अगेन बी रिड्यूस टू कपास. ऐसी परिस्थिति में आई एम कोटिंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. His very significant observations, his very powerful observations, I quote. और अंतिम, from a long-term perspective, he said, I quote, "What perturbs me greatly is the fact that not only India, that is the parties place creed before country, creed guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood," unquote. So you have, friends, twofold job. One, to keep us healthy in body and mind, and also to ensure, ये हमारा मंत्र है, हम सभी का चाहते हैं सभी खुश रहें. तभी फलीभूत होगा जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे. इसके अंदर मैंने राष्ट्रवाद का एक एंगल जोड़ा है, क्योंकि दुनिया के हालात को देखने से स्पष्ट है कि वी मस्ट बी कमिटेड टू आवर नेशनलिज्म. मैं व्यापारियों को, कॉरपोरेट सेक्टर को, उद्योगपतियों को भी आह्वान करूंगा, दे मस्ट ऑल्सो थिंक एंड रिफ्लेक्ट एंड स्टैंड कमिटेड टू इकोनॉमिक नेशनलिज्म. जो चीज हमारे यहां हो सकती है, हम जिस चीज को पैदा कर सकते हैं, क्या वो बाहर से आनी चाहिए? अजीब लगता है, पतंग बाहर से आती है, दिया बाहर से आता है, फर्नीचर बाहर से आता है. हमारी प्रतिभा में कहां कमी है? Therefore, no amount of economic gain can justify deviation. एक नई समस्या उभर रही है, स्ट्रेस, टेंशन, बग ऑफ कंपटीशन. गो सिस्टम इमर्ज हो रहा है. हर आदमी को अपनी प्रतिभा को उजागर करने का माध्यम है. वी हैव एन इकोसिस्टम वेयर, due to affirmative policies of governance, one is unable to fully exploit his or her potential. तो टेंशन किस बात का? We must develop a culture in the country. We must work to ensure कि टेंशन और स्ट्रेस को खत्म करें. And this blind, reckless pursuit of competitive mechanism must get rationalized, and I am sure all concerned will be careful about it. ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे आग्रह करूंगा,
हर नागरिक को 24 घंटे में से 1 घंटा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देना चाहिए। Why we can afford to ignore our health? 24 घंटे में 1 देंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा, प्रगति की रफ्तार में गति आएगी, एंड वी विल गेट आवर ड्यू इन द कमिटी ऑफ नेशंस। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोस्ट आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू बिकम अ पिक्चर of that concern, people look at you with sympathy. This should end, and we must. देश का स्वस्थ होना जरूरी है। राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। Minister, it is already there in more than 80 countries. It means connected to nature, connected to that essence which can only contribute with positivity, with no side effects. शरीर को हील भी करता है, ठीक भी रखता है। अपने देश के 70 के दशक में 1973 में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम आया, एक अच्छी शुरुआत हुई, गुड बिगिनिंग। पर 2014 में बहुत महत्वपूर्ण, वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस। इट वाज ऑन दैट डे दैट गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्टिंग स्पाइनली स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस और एक नए मंत्रालय का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य था हमारे प्राचीन चिकित्सा पद्धति के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और स्वास्थ्य के आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रसार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई। खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, अचीवमेंट्स हैव बीन माइलस्टोन्स, द कंप्लीट टर्न अराउंड, and people are increasingly involved in this kind of medicine, this kind of therapy that has come to us historically and from ages. कोविड महामारी को नियंत्रित करने में this facet of medicine has played critical role. बंगाल में राज्यपाल रहते हुए मैंने देखा, होम्योपैथी किट्स were given to COVID warriors. They were extremely effective and impactful. Preventive भी थे, क्यूरेटिव भी थे, both aspects were there. अब जब कोविड की चर्चा करता हूं तो थोड़ी सी एक बहुत ही दूर सोच का संकेत देता है। उस समय 1.3 बिलियन पीपल बाय दिस वन मास्टर स्ट्रोक, द विजनरी प्राइम मिनिस्टर कुड इंस्पायर द पीपल दैट यू मस्ट हैव पीपल्स कर्फ्यू, एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। पर कुछ लोगों ने नुक्ताचीनी की, कुछ लोगों में डीएनए इतना जबरदस्त है कि नुक्ताचीनी का कोई मौका छोड़ते ही नहीं है। अब जहां व्यक्ति है नुक्ताचीनी में करो, आपकी प्रतिस्पर्धा है, समाज में हो, राजनीति में हो, कहीं भी हो करो, पर जहां देश का मुद्दा है वहां किस बात की नुक्ताचीनी? मैंने खुद राज्यपाल की हैसियत से इस कर्फ्यू में भाग लिया। फिर हमने बजाया, कैंडल जलाई, कोविड वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए। तो कुछ लोग उसकी साइंस में चले गए
कि समझ में नहीं आता इससे हौसला कैसे बढ़ता है। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन उन लोगों का जो खुद की जान हथेली पर लेकर समाज को सुरक्षा दे रहे थे, हमारे जीवन को बचा रहे थे, उनके लिए क्या इतना नहीं करेंगे। फिर आगे आया इनोवेशन, कैसे करेंगे, दशकों लग जाएंगे, हमें तो बाहर का ही वैक्सीन चाहिए। हजारों इमीडिएटली गो अगेंस्ट आवर ओन पीपल, और नतीजा देखिए, देश में तो प्रभाव पॉजिटिव रहा ही। हमने 100 से ज्यादा देशों की मदद की। विदेशों के जब लोग आते हैं और मुझसे उपराष्ट्रपति के नाते मिलते हैं, दे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड that even those times, while engaging into taking care of your own population, large population, you were hand-holding other nations. Vaccine Maitri, extremely effective. 220 करोड़ टीके लगाना विशाल जैसे भारत में आसान नहीं है, पर उससे भी जबरदस्त क्या है, every vaccination certificate is digitally mapped and available on your mobile. दुनिया के किसी भी देश स्वस्थ रहे, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी प्रोडक्टिव होगा जब हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए। There have been critical interventions, very rewarding, और नतीजा देखिए, 22 AIIMS have been approved in the country, and there is almost one medical college that is coming up every month in last 8-9 years. दुनिया हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहती है? क्वालिटी मेडिसिन्स एंड वैल्यू फॉर मनी। इसका श्रेय जाता है ह्यूमन रिसोर्स पर, हमारे कमिटमेंट के ऊपर, एंड दैट इज वाई वी हैव दैट % ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनालाइज कीजिए हाउ क्रेडिटेबल कीजिए हाउ क्रेडिटेबल अचीवमेंट दिस इज। मुझे बहुत प्रसन्नता है, जानकारी ली है, आपका मंत्रालय और आपका सचिव, दे कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड, फोकस ऑन रिसर्च, फोकस ऑन डेवलपमेंट, और पूरे देश के अंदर ताना बाना वेलनेस सेंटर्स का जो उभर रहा है, उसमें माननीय मंत्री जी आपके मंत्रालय की छाप है, वो उभर कर आती है, लोगों का आकर्षण बढ़ा है, एंड दैट्स समथिंग वेरी ग्रेट। While I am grateful to the Honorable Minister Sonowal ji for affording me this rare opportunity of a very satisfying nature, I congratulate him not only for leading the department to greater heights with larger involvement and impactful presence all over the country, but also for the region by bringing all stakeholders of traditional systems of medicine on one platform to generate wider. I wish great success to this endeavor. Wishing you all Nirogi Kaya, good health, Jai Hind. तो आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। अनुभवों पर विभिन्न स्तर पर विभिन्न सत्र इसमें आयोजित किए जाएंगे। देश भर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से कोविड के दौरान एक बेहतर प्रबंधन के साथ भारत ने नेतृत्व करते हुए कोविड के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी।
साथ ही उन्होंने कहा कि 247 में जो हमारी शक्ति चश्मे को यहीं छोड़ जाएं। और यहाँ पर खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री